In the last session, we learned about physical layer and data link layer. Okay. Now today we are going to talk about the other layers, the remaining layers. One is the network. Second is transport. Then it is session, presentation, and application. Okay. Let's see which one we cover today. Okay. Now we saw that when two machines are communicating, okay, they have a physical address. Okay. They are communicating. They may be connected to a switch. Okay, so there can be one more computer here, which is connected to switch. Okay. Now, when they're connecting with each other, physical address is fine. Okay, but human beings are not able to remember physical address. So when you want to test, okay, whether this machine is able to communicate with this, so we use ping command. Ping command में हम लोग we never use MAC address. We use IP address. Because IP address is easy to remember. That is why the IP addressing came into picture. Okay. So it's why IP address? Why do we need IP address? We only to identify a machine logically. It has nothing to do with physical. Physically, MAC address is fine, but logically, if you want to identify, then you need MAC IP address. Okay. Now, in IP addresses, you might know class A, class B, class C, which in theory you can learn that. It is basically there. Okay. A common question IP address is what is known as private IP address page. Do you know what is private IP address? IP address. Okay. Okay. See, what happened is when the internet started booming. Okay. The IP addresses which were used IPv4, IP version 4. Okay. They start from 0.0.0.1 till 255.255.255.254. Okay, this is the range which you can assign. They never felt that this will get consumed. Okay, but when so many machines came on the internet and giving IP address to each machine, uh, IP address unique to that machine was very tough. You should not get conflict anywhere in the world, right? If you have to suppose your IP address given by your ISP, nobody else in the world should have that IP address at that time, or else in conflict. So there will be an issue. So that's why what happened is, uh, first they did not know. Then what they decided is, let us reserve some IP addresses for local LANs. Okay. So for a LAN in class A, there is an IP range of 10.0.0.0. Okay. For class B, there is a range of 172.16.0.0 to 172.16.32.0. Okay. There is in class C, which is the IP range? Okay. 192.168.0.0. So these IP addresses, if you give, these are allowed to give in your network. Okay. You cannot give these IP addresses on the internet. These are reserved IP ranges. These are called private IP addresses. And all other IP addresses are public. Those can be given. So what happens is, suppose you are building a network. Okay. There is a router which is connected to the internet. Okay. Now, router will get some public IP address from the internet service provider, which is called an ISP. So they get some public IP address. Router does a mapping, which is called as PAT or NAT, port address translation or network address translation. And this side of the router is, suppose you may give 192.168.1.1. This is the IP address of the router. This is this side. This side is public IP address. This is private IP address. Okay. So when router communicates, suppose 192.168.1.2 tries to communicate with the internet.
it will first go to its gateway, default gateway, which is this. Then this will translate to this IP address and connect to the internet. While coming back, again, that happens. Now, how that happens, slightly, there's a port concept that will come to transport layer. Then I will teach you that. Okay, till that now, this time is clear? Okay, now IP address is clear. What will be the network range, IP range for this network? Any idea what will be the network ID of this network? Okay, so 192.168.1.0. This is the network. Okay, this is our network. You can give now what is the subnet mask for this? Default. What 255? Why this is given? Okay. Okay. See, what it says is this part is the network and this part is the host. Whatever is in 0 is the host. How it is used? Now suppose 192.168.1.3 wants to communicate with node 2. Okay. So it checks its network range. Suppose you say, I want to communicate with 192.168.1.2. This person knows, this machine knows 192.168.1.2 को connect करना है. Okay. Now what it will do, it will use its subnet mask to find out whether the destination network is local or outside. तो सबनेट मास्क जब वो लगाएगा उसको all ones है. Okay. तो all ones जो होंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा? ये आएगा सेम. So it will say कि my network and this network is same. It checks using subnet mask. है ना? Suppose I ask him to communicate with 1.1.1.1. तो वो क्या करेगा? अपना इसका सबनेट मास्क इसको लगा के देखेगा. तो इधर तो इसको ये दोनों अलग है दिखेगा. तो वो बोलेगा ये आउट ऑफ द नेटवर्क है. आउट ऑफ द नेटवर्क रहेगा तो क्या करेगा? गेटवे को जाएगा. उसमें जो गेटवे कॉन्फ़िगर करते हैं ना हम लोग, देयर आर 3 थिंग्स वी कॉन्फ़िगर, 4 थिंग्स एक्चुअली, बट 3 मिनिमम. फर्स्ट इज आईपी एड्रेस, सेकंड इज सबनेट मास्क, थर्ड इज गेटवे. गेटवे अगर उसको ये मेरे नेटवर्क के बाहर है, then it will communicate with the router. Right? Yes. That's why subnet mask is very important. You have to give subnet mask to understand whether the destination IP is in my network or outside my network. Yes, that is the most important thing of network layer, to find out whether machine is in my network or is it outside the network. Okay, so that till now it is clear, right? So now it goes from here to here. Okay, all good, very nice. Okay, now let's come to the transport layer. Okay, now this machine wants to communicate with this machine. Okay, which application does it wants to connect to? Suppose इसके ऊपर एक वेब सर्वर है, वेब सर्वर which is hosting a website. So this machine wants to access the website. Website का port क्या होता है मालूम है आपको? 80. So it will say कि in the browser, if you suppose the browser, it will type 192.168.1.2. ऐसे डालेगा तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 एक्सेस होता है. ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं उसको कि मेरे को आपका पोर्ट 80 को एक्सेस करना है. जब वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आता है तो वेब सर्वर पोर्ट 80 में लिसन करता रहता है. इट्स लिसनिंग, इट्स रनिंग इन द बैकग्राउंड. इट्स कॉल्ड द डीमन. पोर्ट 80 के ऊपर एक वेबसाइट रनिंग है, वो लिसन कर रही है. तो जैसे ही जैसे रिक्वेस्ट आया वो रिस्पॉन्स देता है. ओके, तो उनका कनेक्शन चालू होता है. अभी क्या होता है, हाउ डज दिस मशीन नो कि सपोज इस मशीन इसी मशीन से 2 ब्राउजर है, दोनों ने सेम आईपी डाला है और एक्सेस किया है. तो इसको पहले एक अलग आएगा, इसको भी आएगा.
फिर ये बोलेगा मेरे को अंदर का भेज दो, सपोज फॉर एग्जांपल करियर्स पेज, और ये तो करियर्स पेज नहीं मांगते, ये कॉन्टेक्ट पेज क्लिक करते हैं। तो इसको कैसे मालूम पड़ेगा इसमें से कौन से इसको क्या भेजने का है? आईपी तो सेम है कैसे, लेकिन सेशन बराबर नहीं, सेशन के लेवल पे नहीं होता ये, पोर्ट लेवल पे होता है। whenever there is a communication between two machines, it happens in a socket बोलते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल में इट कॉल्स सॉकेट, टीसीपी जब यूज होता है वो क्या करता है, वो बोलता है कि एक पैटर्न बनाता है। ओके, पहले व्हाट इज द सोर्स आईपी 192.168.1.2, sorry 1.2 colon some random port which is more than 1023, because 1023 तक जो ports आते हैं are reserved they are for that service, like FTP को 20 और 21 रहता है, HTTP को 80 रहता है, HTTPS को 443 रहता है, ऐसे वो फिक्स रहता है। तो 1023 तक कुछ नहीं होता है, मशीन क्या करता है, इसको तो रैंडम जनरेट करता है फ्रॉम 1024 till 655 तक। हाँ, तो वो देखता है कि ओके ये कनेक्शन करने का अपने को बाहर, तो सोर्स पोर्ट जो रहेगा ना, दैट इज समथिंग अराउंड 1080 फॉर एग्जांपल। ये डायनामिक होता है, हमको नहीं दिखता है, हमको आप नेट स्टैक कमांड यूज करोगे ना तो उसमें दिखता है। ओके, देन इट सेज व्हाट इज द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है हमारा, हाँ सॉरी ये 3 है, हाँ ये अपना 3 है, हाँ ये 3 है, व्हाट इज 192.168.1.2 व्हाट, नहीं हमको एक्सेस करना है कोई पोर्ट उस मशीन में, हाँ करेक्ट, तो वी आर एक्सेसिंग द वेबसाइट ऑन दैट मशीन, दैट्स व्हाई द पोर्ट इज इट। नो व्हाट हैपेंस, दिस इज कॉल्ड, ये एक सॉकेट बन जाता है, source IP and port, destination IP and port. Okay. Now, when this machine wants to access connect with this machine, it will connect on 1080 port. अभी इसी मशीन से दूसरा ब्राउजर खोला मैंने, उसको वही 192.168.1.3 फॉर एग्जांपल आ जाए उसको। तो दिस इज कॉल्ड एज, ये जो पोर्ट है ना, ये लॉजिकल है, नथिंग फिजिकल इन दैट, बट दिस इज व्हाट प्लेस, एंड मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि रिवर्स कम्युनिकेशन कैसे होता है। जब आपको जब आप उसको एक वायर शार्क करके यूटिलिटी है, वायर शार्क अब जब ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कौन से सॉकेट्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। दिस डेटा लिंक लेयर पे हम लोग क्या बोल रहे थे, फ्रेम बोल रहे थे, नेटवर्क में क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं right? हाँ ऐसा, और फिर आगे तो कुछ नहीं। हाँ, तो दिस इज हाउ टीसीपी कम्युनिकेट्स। अभी जब यूडीपी रहता है ना, यूडीपी में क्या होता है, यूडीपी का क्या बोलते हैं, यूनिफाइड डेटाग्राम प्रोग्राम, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, तो हाँ वो प्रोटोकॉल टीसीपी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी इज डिफरेंट। तो यूडीपी में कनेक्शन लेस रहता है, तो इट डजंट, ये जब इसको कम्युनिकेट करेगा पहले सिंक भेजता है, फिर सिंक टैग आता है, फिर एक्नॉलेजमेंट जाता है, वो यूडीपी वो नहीं करते, यूडीपी डायरेक्ट भेज देता है, वो बोलता है मेरे को नहीं मालूम, तुम्हारा जो करने का करो। जब स्ट्रीमिंग करते हैं हम लोग वीडियो वीडियो वीडियो, तब यूडीपी हो जाता है, तो थोड़े पैकेट गए तो भी चलते हैं, थोड़े सॉकेट्स, ठीक है। Sorry, it's not called socket. Socket is created, but it's called a segment. They talk in segments and not in sockets. Socket is created between these two. तो उसके बाद segments यूज होता है। The same example. Now एक ही ब्राउजर में, एक ही ब्राउजर में मैंने ओपन किया, इधर इधर ओपन किया, ये वेबसाइट खुल गया। ओके, अभी मैंने वेबसाइट बंद कर दिया, ओके फिर से खोला, मैंने लॉगिन किया था पहले, अभी लॉगिन नहीं है,
पर मेरे को ऐसा चाहिए कि वो ऑटो लॉगिन होना चाहिए every time it connects. So that's why there is something called as cookie, which maintains a session. वो कुकी मेंटेन करता है कि आपका सेशन, और नॉर्मली वेब सर्वर में एक सेटिंग रहता है वेयर यू कैन से कि ये सेशन कितनी देर तक ऑन रखना है किसी का भी। जितना ज्यादा लंबा सेशन टाइम रहेगा उतना मेमोरी ज्यादा खाता है सर्वर, जितना कम रहेगा उतना मेमोरी को स्टोर करके रखते हैं ना मेमोरी में, कि वापस इसने अगर कनेक्ट किया। हाँ, now there are many different ways to maintain a session. Sometimes people also use a database to maintain session, कि ये रिक्वेस्ट आया इसमें डेटाबेस में एंट्री कर दिया तो डेटाबेस में रहता है वो, तो बाद में वापस रिक्वेस्ट आया तो डेटाबेस में चेक करता है कि पहले ये मशीन से आया था क्या, अगर आया था तो ठीक है उसको वही सेशन रिज्यूम करो। तो यूजर को ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है इसलिए वो ऐसा करते हैं, सेशन मेंटेन करते हैं। तो दैट्स समथिंग कॉल्ड अ सेशन, एंड नॉर्मली हैकिंग जो होता है सेशन सेशन हाईजैकिंग बोलते हैं। तो पहले सेशन बन गया है तो बीच में एक अटैकर आ जाएगा और वो सेशन सेंस करेगा कि कहाँ पे सेशन चल रहा है, वो ले लेगा और खुद कनेक्शन करेगा उस सेशन पे, कुकी का कॉपी करेगा और खुद डालेगा। तो लॉगिन करने की पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट शुरू हो जाएगा। That's why cookies are there. Cookies is just a file. It's a file which writes कि ये सर्वर है, इसका यूजर नेम ये है, इसका पासवर्ड ये, एनक्रिप्टेड रहता है कई बार पासवर्ड। और एडवांस लेवल पे अच्छा है, सेशन हाईजैकिंग इज नॉट इजी, people do it. Okay, now what I would like to give you a homework is like IP addresses में how do you do subnetting? ठीक है, अभी मैं हमने क्या बोला कि 192.168.1.0 और ये सब ऐसा है। अभी मुझे क्या करना है, इसमें भी और नेटवर्क क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है एटलीस्ट 6 नेटवर्क क्रिएट करना है, और बाकी सब जो है वो होस्ट के लिए यूज करना है। आपने पढ़ा है कभी आईपी एड्रेसिंग कि कैसे सबनेट बनाते हैं, बाइनरी क्या होता है, फर्स्ट 3 बिट्स, सेकंड 3 बिट्स, वी विल हैव टू टीच द स्टूडेंट्स दैट। आप बाइनरी किसी को नहीं आता, आपको सिखाना पड़ेगा कि 255 का मतलब है 11111111 ऐसा। और अगर आपको 8 आपको चाहिए तो आपको पहले 3 बिट लेने पड़ेंगे, 2 0, 2 1, 2 है ना। तो कितना हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 1 हुआ मतलब 2, और ये 2 4, तो 7 हुआ। तो योर 7 नेटवर्क्स कैन बी पॉसिबल हियर ऐसा। बट इसमें आईपी कितने होंगे फिर, 0 2 31, 2 5 32। तो वो 32 के जगह 31 हो जाएगा। 2 0 is 1, 2 is 2 1 is 2, 2 is 4, 1 2 3 4 प्लस 16, बराबर। तो कितना हुआ, 16 प्लस 8 इज 24, 28, 30, 31। फिर ये ऑल वंस है ना इसलिए 31 हो गया, बराबर। ऐसा आप सबनेट करते आना चाहिए, then students will know what is IP addressing। और वो सबनेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को ना इनका ब्रॉडकास्ट इधर नहीं जाना चाहिए, उनका ब्रॉडकास्ट उधर नहीं जाना चाहिए, इसलिए वैसे करते हैं, ठीक है। एंड दैट्स वेयर वी यूज राउटर्स। अभी आपको आईपी एड्रेस असाइन करने होंगे मशीन्स को, तो देयर आर 2 ways टू डू इट। वन इज बेसिक, आप मैनुअली जाके असाइन करो, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं तो भी सेंट्रली रखना पड़ेगा डेटाबेस। अगर आपको याद नहीं रखना है तो राउटर के ऊपर या कोई भी सर्वर मशीन के ऊपर DHCP सर्वर डाल दो, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आईपी एड्रेस देता रहेगा, तो ऑटोमेटिक मशीन ऑफ होगा, ऑन होगा, इसमें आईपी मिल जाएगा, फिनिश। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? तो सेशंस का उधर हो गया, कुकीज एंड ऑल दैट इज। प्रेजेंटेशन एज यू नो इट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, ASCII है, FCD है, व्हाटएवर, तो वो ट्रांसलेशन एन्क्रिप्शन हैपेंस ऑन दिस लेयर, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो अगर कुछ एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन करना है तो यहाँ पे होता है। एप्लीकेशन लेयर इज द UI मेजरली, जहाँ जो यूजर को जो दिखता है वो वहाँ से वो एक्सेस करता है, राइट। तो दिस इज अबाउट द OSI layers।
दिस OSI लेयर क्या है? Why OSI? It's the model on which communication होता है, वो प्रोटोकॉल के लिए मॉडल, प्रोटोकॉल बनाने के लिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल टेकिंग अ लेमैन एग्जांपल, आप अगर सिग्नल पे जाओगे तो सिग्नल पे कौन से 3 कलर रहते हैं लाइट के? रेड, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। ओके, वही क्यों रहते हैं? कोई तो बोलेगा ब्लू लगा दो, ब्लैक लगा दो, व्हाइट लगा दो। बट तो ऑरेंज भी कर सकता था ना, ऑरेंज भी डेंजर लगता है, पिंक भी डेंजर लगता है ना? क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल फॉलो दैट रूल, दैट इज अ मॉडल। सेम वे ओएसआई इज अ मॉडल व्हिच ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल यूज। नहीं तो क्या होगा, दूसरे कंट्री में जाओगे वहां पे कलर अलग है, तो आपको चलाने नहीं आएगा गाड़ी। So that's why people have standards. They put in models and standards कि इसके बेस पे बनाओ जो भी बनने का, नया कुछ मत करो। नहीं तो इंटरऑपरेबिलिटी जो बोलते हैं कि you this this these people when they go to different country they will not be understand. जैसे अभी यूएस में राइट हैंड ड्राइव रहता है, इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव रहता है, देयर इज प्रॉब्लम देयर। बट देन एटलीस्ट दो ही है पूरे वर्ल्ड में, कुछ कंट्री ये करते, कुछ कंट्री वो करते हैं, स्टिल दैट इज ओके। So that's why there is a OSI layer model इसको बनता है। तो आप इसके लिए थ्योरी पढ़ो, आईपी एड्रेसिंग में आपको आना चाहिए, किस कब कैसे टुकड़े करने का, क्या करने का। मतलब वन सेशन ओनली ऑन आईपी एड्रेस, बाइनरी आईपी एड्रेसिंग के ऊपर होना चाहिए। सो पीपल विल कम टू नो कि एग्जैक्टली आईपी एड्रेस कैसे यूज होता है और क्यों होता है, मैंने बता दिया आपको। और कैसे होता है वो भी आना चाहिए। पहले लोगों को कैसे होता है वो आता है, क्यों करते हैं वो नहीं मालूम। क्यों करने का सबनेट ऐसा पूछा ना तो गड़बड़ होता है। या हम बोल सकते हैं कि सी यू हैव दिस नेटवर्क क्रिएट 10 सबनेट्स एंड लीव अदर्स फॉर होस्ट, ऐसा बोल दिया क्वेश्चन। 10 करने का क्यों? क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट कम करना है हमको, टुकड़े करने हैं नेटवर्क में। प्लस यू डोंट वांट सम फॉर सिक्योरिटी पर्पस आल्सो यू वांट टू डू नेटवर्क, ये नेटवर्क ने इस नेटवर्क से बात नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अलग अलग नेटवर्क, लाइक इन मीनिंग दे कॉल इट वीलैन्स, वर्चुअल लैन। तो वीलैन क्रिएट करते हैं तो नेटवर्क क्रिएट होते हैं अलग अलग, वहाँ पे बीच में आपको एक राउटर लगता है जो इनके कम्युनिकेशन करके देगा। बट यहाँ का ब्रॉडकास्ट वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ का ब्रॉडकास्ट वहाँ नहीं जाएगा, और सिक्योरिटी रहेगा। हाँ, नॉर्मली व्हेन पीपल, सम पीपल दे देयर इज अ कस्टमर, जो बहुत सिक्योर कस्टमर है, उसका डेटा सिक्योर रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, उतने सब लोगों का मशीन एक वीलैन पे लगा देते हैं, और बाकी सब अलग वीलैन पर रहेंगे। दिस वीलैन कैन नॉट कम्युनिकेट विद दिस, ऐसा सेटिंग कर देते हैं ऑन द राउटर, ऑन द स्विच। एक्चुअली स्विच में वीलैन क्रिएट करते हैं, बट स्विच हैज टू कनेक्ट टू अ राउटर टू डू राउटिंग बिटवीन टू नेटवर्क्स। तो वो राउटर के ऊपर यहाँ से वहाँ ब्लॉक कर देते हैं, तो नोबडी कैन हैक इनटू देम। यस, समझे? ओके।